Hello, welcome back to my channel. Today I will start one important portion of geography, that is map of India. So, dear students, you just think this portion is very important because 10 mark, if you will be little bit cautious, then easily you can score 10 marks. Okay, but unluckily most of the students are not able to understand it clearly, so they commit mistakes. That's why I choose this chapter, because out of 10 you can easily score 10 marks if you will little bit conscious. Okay, so first map of India as per the syllabus is concerned. So river, mountain, plateaus, then towns or cities, coastal plains or plains, like those syllabus are here. I can clarify you the syllabus and accordingly I will teach you. So first of all, I am explaining you about the rivers. Okay, so you think two options are there. Either you may use color pencil, that is pencil color, or you may choose plain pencil, HB pencil. But two options are there. In my knowledge, using color is added advantages. That is impressive, because for a different feature, different colors are provided, different colors are given. So that will definitely impressive if you use color instead of using pencil. Okay, first of all you see first river. So river means any water bodies should be mentioned by blue color. Okay, so वाटर बॉडी के लिए हमें ब्लू कलर देना चाहिए. सो ये ध्यान से देखना, ये सपोज ये एक रिवर, ये पतला लाइन एक रिवर, रिवर का ऊपर हम देंगे ब्लू कलर. It is clearly mentioned, don't put the color below the river. You just put the color, that blue color, on the upper portion of the river. And the arrow mark should be towards the feature, like this. So I will clear this. First I can say about river, mane Indus IJCRB. I am just telling you, river means that should be blue color. You just follow the method IJCRB. इसका मतलब first river is Indus. According to syllabus, first is into Indus. You just put one. This is the Indus river. Okay, it has gone towards Pakistan. So this is the Indus. So above the Indus river, you just put one blue color line. That line should not come below the line of the river. It should be above. I repeat, you can use pencil or you can use blue color, blue pencil color. Okay, so this is Indus river. So the arrow mark should be towards the feature. So like this. Suppose this one, number 1A. This should be written in capital. The Indus river. Okay, this should be mentioned in capital. Okay, like this. Arrow mark should be mentioned here. Don't put arrow mark here. The arrow mark should be mentioned towards the feature. Indus हो गया. Then Jhelum. This one Jhelum. I gave you the हाँ, एक रिवर जो फुल लेंथ इतना होता है, हम पूरा लेंथ नहीं ले सकते. इससे कम का ऊपर हम दे सकते, कलर दे सकते, लेकिन डोंट क्रॉस द लिमिट ऑफ द फीचर. कोई अगर यहाँ तक कलर दे दिया, दैट इज गलत. डोंट क्रॉस द
limit of the feature. Always try to color the portion less than the actual length of the or actual size of the feature, but don't cross the limit of the feature. So this one Jhelum. So this should be Jhelum. IJ, then C Chenab. टोटल यहां तक मैंने यहां तक दिया. IJC, then राभी RAVI, IJCRB, then बीज. ओके, IJCRB. सो ये हो गया इंदौर. देन इंदौर के बाद सो यू जस्ट फॉलो दिस मेथड. सो इंडिया में इसके बाद मैं बोलता हूँ इंडिया में जो मेन रिवर होता है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज. सो दिस शुड बी सतलज रिवर. सो यू कैन पुट लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस. दिस इज सतलज रिवर. सतलज रिवर से इंदौर रिवर पाकिस्तान तरफ गया. सो दिस वन सतलज बी द सतलज रिवर. ओके, कंप्लीट. देन देखो इंपॉर्टेंट चीज, दिस शुड बी on pencil. Suppose I will mention it in pencil. So this will be better. So when necessary I will use this. So this one Yamuna, then Ganga, Yamuna Ganga, then Gomti Ghagra Gandak Kosi. याद रखना, यमुना गंगा, गोमती घाघरा गंडक कोसी. ओके, सब इसका ऊपर हम दे देंगे ब्लू कलर. यमुना गंगा. सो दिस शुड बी यमुना. देन गंगा, गोमती घाघरा गंडक कोसी. ओके, देन नीचे चंबल बेटुआ सोन. ओके, SON सोन. देन दिस वन ब्रह्मपुत्र. यू सी हिमालय से आया, लेक मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र. देन दिस वन दामोदर. ये 2 ब्रांच है, तुम कोई एक ब्रांच में दे सकते या 2 ब्रांच में दे सकते. दामोदर. देन दिस वन इन ओडिशा. दिस वन महानदी. यहां तक दे सकते या पूरा दे सकते. महानदी. दिस वन गोदावरी. पूरा ऐसे दे सकते या फुल यहां तक दे सकते. गोदावरी. देन कृष्णा. ये कृष्णा नदी से रिवर से एक जो ब्रांच होके गया वो होता है तुंगभद्रा. रिवर तुंगभद्रा, कृष्णा तुंगभद्रा. कभी कभी ये भी आ जाता. तो अब ये कावेरी. कावेरी का स्पेलिंग जैसे कुरान का स्पेलिंग QUARAN व KORAN, इसलिए CAUVRI या KVRI. ओके, डोंट कंफ्यूज. कावेरी. देन नर्मदा ताप्ती. कोई इसको ताप्ती बोला जाता है, ताप्ती भी इसका नाम. नर्मदा ताप्ती. ओके, सो प्रत्येक रिवर कंप्लीट हो गया और रिवर को हम देते हैं ब्लू कलर. सो दिस वन कंप्लीटेड. देन माउंटेन. ओके, मैंने तुम लोग को कहा रिवर होना चाहिए ब्लू कलर, माउंटेन या प्लेटू ब्राउन कलर होना चाहिए. माउंटेन में एक माउंटेन बताता हूँ. फर्स्ट हम देखेंगे द हिमालयज. ये नेपाल का ऊपर भी जाएगा, लेकिन कोई भी माउंटेन शुड बी मेंशन्ड इन सिंगल कलर फ्लैट लाइन. फ्लैट सिंगल कलर लाइन, मोटा सा लाइन लेना. लेकिन कोई भी माउंटेन को नदी का ऊपर मैंने चढ़ा के नहीं लेना है. डोंट क्रॉस द रिवर, डोंट टच द रिवर. माउंटेन शुड नॉट बी क्रॉस द रिवर, टच द रिवर लाइक दिस. वो नेपाल कहाँ पर, यहाँ पर. तो हिमालय को ऐसे दे दो. ये रिवर है लाइक दिस. ये हो गया. ये दिस शुड बी इन ब्राउन कलर, पेंसिल कलर ब्राउन कलर. सो पिक्चर शुड बी लाइक दिस. आई टोल्ड यू एक साइड को ले आना सबसे बेहतर होता है. क्यों? सी द हिमालयज. ओके, हिमालय हो गया. इसके बाद याद रखो, व्हाई राजस्थान इज ए डेजर्ट. राजस्थान डेजर्ट क्यों होता है? जो साउथ वेस्ट मानसून विंड गोज पैरेलल टू द
Aravalli Hill. So Aravalli Mountain. So this is Aravalli, like this. ये जो ऐसे रहा, ये आरावली, ये नदी का ऊपर नहीं चढ़ाना, ये आरावली, ये विंध्य, विंध्य आरावली, विंध्य VINDHYA, ये आरावली। इसका अंदर जो रहेगा, ये रहेगा वो नर्मदा तापी का अंदर, ये होता है सतपुरा। आरावली, विंध्य, सतपुरा, आरावली, विंध्य, ऐसे आरावली, विंध्य, इसका ऊपर नहीं चढ़ाना। इसके बाद ये दोनों नदी का बीच में सतपुरा और द सतपुरा रेंज। ओके, देन आ गया ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, सो लाइक दिस, ये रिवर का ऊपर टच नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा आया, ऐसे वेस्टर्न घाट। जहां पे याद रखो इंडिया का ये वाला फिगर, इसे ये परपेंडिकुलर तरफ, इसी जगह में ये होता है वो नीलगिरी। ओके, आई थिंक यू माइट हैव क्लियर दिस। सो दिस शुड बी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से ये इंडिया मैप को देखना, ये जो परपेंडिकुलर तरफ लगता, इसके सीधा में ये होता है द नीलगिरी और नीलगिरी माउंटेन और नीलगिरी हिल, और वेस्टर्न घाट से निकला। ओके, तो वेस्टर्न घाट थोड़ा, ईस्टर्न घाट वेरी क्लोज टू द सी कोस्ट, वेस्टर्न घाट ये थोड़ा, ईस्टर्न घाट थोड़ा होता है वो नदी का ऊपर नहीं जाना है। एक्चुअली इसके बाद ये जो होता है गोदावरी, कहाँ है गोदावरी कृष्णा, इसका बीच में वो है नहीं, डिसकंटिन्यूस, इसको लेना है। ये होता है ईस्टर्न घाट। ओके, ये कैसे ये कौन सी कलर होना चाहिए, ब्राउन कलर होना चाहिए, और इसका एरो मार्क को हम ऐसे लेंगे। ओके, हो गया। देन नेक्स्ट चीज काराकोरम रेंज, ये लाइक दिस, सिंगल कलर, ये होना चाहिए सिंगल कलर, ब्राउन कलर, सिंगल लाइन। सो ये जगह में एक होता है माउंटेन, इसको बोलते हैं केटू बा गड्डी, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ट्रेंगल तरफ दे दो, ये ब्राउन कलर केटू या गॉडिन, माउंट केटू या गॉडिन ऑस्टिन, माउंट गॉडिन ऑस्टिन हो गया, केटू गॉडिन ऑस्टिन हो गया। और नेक्स्ट माउंटेन, आई थिंक माउंटेन कंप्लीटेड। देन एक होता है माने कांचनजंगा, जब हम नेपाल जाते हैं, जब सिक्किम जाते हैं, कांचनजंगा को देखते हैं, तो कांचनजंगा होता है, ये क्या होता है, ये जगह में, ये जो बॉर्डर लाइन में, यहाँ पे कांचनजंगा, मैं बता देता हूँ कांचनजंगा, और कुछ रहा देखता हूँ। कांचनजंगा, कांचनजंगा इस साइड में होना चाहिए, ये यहाँ पे, मैं इसको चेंज लगा देता हूँ। ये नेपाल जहाँ पे देखो खत्म हुआ, यहाँ पे ये ब्राउन कलर का, ये नेपाल यहाँ पे खत्म हुआ, जहाँ पे खत्म हुआ यहाँ का ब्राउन कलर का ट्रेंगल बना देना, ये होता है कांचनजंगा। कांचनजंगा के पास एक होता है नाथुला पास, उसी पास में होके आते थे पहले, जब मुस्लिम लोग इंडिया आते थे, when they are invading India, they were coming through Khyber पास, माने वो नाथुला पास, काराकोरम पास, ऐसे लाइक दिस। सो पास मतलब जमीन होके, जो जमीन का अंदर जो पास होता है माउंटेन में, एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए। तो नाथुला पास एक्चुअली क्या होता है, इस साइड में होना चाहिए, ये जो होता है यहाँ पे, इसको बच्चों ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते, तो इसीलिए मैंने बोलता हूँ ये जगह में, ये लाइक दिस, वो रेड कलर ऐसे होता है। मैं यहाँ तुम लोग को बता देता हूँ कैसे होना चाहिए, वहाँ तो विजिबल नहीं हो सब होगा, वो रेड कलर का ऐसे होता है, पास का सिंबल, समझे, रेड कलर का सिंबल।
लाइक दिस। ये रेड कलर का यहाँ ऐसे ये हो गया, इस तरफ आते इस तरफ हुआ साउथ वेस्ट। अच्छा, ये नाथुला पास, और ये जो स्लोप हुआ यहाँ काराकोरम पास। ओके, सो नाथुला पास, काराकोरम पास, ये रेड कलर लाइन होना चाहिए। ओके, देन मैं तुम लोग को बताता हूँ, माउंटेन हो गया। देन प्लेटू के बारे में बताता हूँ। एक छोटनागपुर प्लेटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लेटू होना चाहिए ब्राउन कलर, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये जगह में ये जो रिवर दामोदर आया, दामोदर जो ब्रांच हुआ इसे फर्केटेड हुआ, उसी का बीच में ये होता है छोटनागपुर प्लेटू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट because one of the industrial belt of India. Many minerals, deposit of minerals are abundantly found in छोटनागपुर प्लेटू। ओके, तो अब अगर ये प्लेटू के बारे में हम बताते, इसके बाद द डेक्कन प्लेटू और द ग्रेट इंडियन प्लेटू, ये होना चाहिए ब्राउन कलर, डेक्कन प्लेटू और ग्रेट इंडियन प्लेटू। ये होने के बाद देन मैं तुम लोग को बताता हूँ, उसी प्लेटू में हम लोग का और भी बेहतर चीज होता है, जो इंडस्ट्रियल यूनिट, जो सिंहभूम झरिया कोलफील्ड, सिंहभूम आयरन ओर डिपोजिट, ये पूरा याद रखना। झरिया होता है यहीं पर, ये रेड कलर होना चाहिए। ये जो नीचे वाला रिवर, यहाँ पे रेड कलर दे देना, ये झरिया। ओके, और ये जगह में इसका जस्ट नीचे 1 सेंटीमीटर नीचे कर दो, ये रेड कलर कर दो, ये झारखंड में ये होता है सिंहभूम आयरन डिपोजिट। और ऑयल फील्ड एक होता है दिग्बोई। ओके, एक दिग्बोई जो ऑयल फील्ड होता है, ये जगह में ये रेड कलर होता है। द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, ऐसे आएगा, मार्क ए डॉट mentioning the largest and oldest oil field of India. You should write a red color dot here and arrow mark should be here. Then you put like this in one side in capital letter. You mention the name, the Digboi oil field. Okay. Then Mumbai High. So मुंबई के पास, मुंबई कहाँ होता है? ये जगह में देखो, तुम्हें पूरा प्लेन लाइन होता है, जहाँ पे थोड़ा काटा काटा होता है, बिंदु बिंदु होता है, वो जगह में मुंबई पोर्ट होता है। तो मुंबई से शायद 156 या 56 किलोमीटर आओ में ये होता है ऑफशोर ऑयल फील्ड। वो आएगा मेंशन 1 ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया। यू शुड राइट लाइक दिस। सो दिस वन मुंबई हाई, द ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में मुंबई हाई। सपोज write and mark a point which indicate the one onshore oil field of India. This is Digboi, no problem. Okay, then हो गया। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, एक दूसरा चीज बताता हूँ। एक अंडमान सी, ये सिलेबस में है। दिस वन, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यू मेंशन ब्लू कलर लाइक दिस, एंड यू मेंशन दिस वन द अंडमान सी। द चिलिका लेक, दिस शुड बी चिलिका लेक, उड़ीसा के पास, इसका अंदर ब्लू कलर दे देना, चिलिका लेक। ओके, देन चिलिका लेक, देन और क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ काम्बर, ये भी होता है। गल्फ ऑफ कच्छ ये जगह में, ये ऊपर वाला, ये इसको ब्लू कलर दे देना। गल्फ ऑफ कच्छ ये होता है, ये वाला नीचे वाला ये होता है गल्फ ऑफ कंबत। कंबत का स्पेलिंग भी याद रखना, KHAMBAT, गल्फ ऑफ कंबत, खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबत। ओके, इसके बाद गल्फ ऑफ मीना माने मानार भी है, ये गल्फ ऑफ मानार, ये ब्लू कलर दे देना, हमारे सिलेबस में भी है गल्फ ऑफ मानार। ओके, कंप्लीट। देन नेक्स्ट चीज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत, तो हम ये देखेंगे सब सिटी के बारे में। ओके, एक सिटी के बारे में जो बताएंगे, पूरा ध्यान देना।
दिस शुड बी मेंशन्ड इन ब्लू कलर ना रेड कलर डॉट। तो पहले कलकत्ता सिटी देखो, इसका भी याद रखने का तरीका होता है, स्टाइल होता है। इफ यू विल नॉट रिमेम्बर टेक्निकली, यू कांट रिमेम्बर। आई almost I remember everything because I remember everything because माने not because I have read it properly, but due to I applied technical mind, तो किसी तरीके में इसको याद रखा जाए। ये आर्ट तुम लोग को पता होना चाहिए। कलकत्ता ये जो होता है तीर तरफ जस्ट ऊपर रेड कलर, कलकत्ता। ओके, कलकत्ता के बाद हम आएंगे विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर होता है? ज्योग्राफी में आता है, द पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया व्हिच इज नॉर्मली अफेक्टेड बाय साइक्लोन, दैट इज विशाखापट्टनम। लैंड लॉक्ड पोर्ट, वो लैंड का अंदर इसको जमीन को काट के पोर्ट बना गया था। ओके, सो विशाखापट्टनम कहाँ होता है? ऐसे एक जगह में हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा, जहां पे देखो ये जगह जहां पे इंडिया का हाल कैसे हुआ है, ये ऐसे आया था, ऐसे थोड़ा स्लोप हो गया यहाँ पे। तो विशाखापट्टनम के बाद सो कम से कम तुम ये जगह में, तो यहाँ से कम 2 सेंटीमीटर इस तरफ पाओ या ये जगह में। ओके, ये क्या होता है? हैदराबाद। ओके, देन आएंगे चेन्नई। ये जो स्लोप हुआ देखो, ऐसे स्लोप हुआ ना, ये जगह चेन्नई। ये भी याद रखना, ये जो बिंदु देते हैं माने पॉइंट देते हैं, ये बाहर नहीं आना चाहिए, बाउंड्री का बाहर नहीं आना चाहिए, ये कोस्ट का अंदर रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज चेन्नई के बाद और एक होता है कोच्चि। ये जगह में इंडिया में एक कोच्चि होता है, एक कोस्टल टाउन। देन मुंबई तो आराम से हो जाएगा। देन दिल्ली को याद रखने के लिए हम वही करेंगे। देखो ये होता है तुम्हारा, ये देखो थर्ड डेजर्ट, ये सैंड, ये येलो कलर होना चाहिए। तो अब ये यमुना, इसको थोड़ा नीचे ये जगह में यमुना नदी के पास अगर हम ऐसे करेंगे, ये गंगा, ये गंगा, ये पीछे वाला यमुना। तो अब यमुना नदी के पास तुम लोग का ये होता है, ये जगह में ये देखो इंडिया ऐसे जो हुआ ना, ऐसे थोड़ा स्लोप ऐसे हुआ इस सीधा में, या यहाँ पे पूरा यमुना नदी को सटा के मिला के हम लोग क्या करेंगे, ये दे देंगे माने दिल्ली। देन एक होता है श्रीनगर होता है, याद रखना IJC चेनाब नदी, इंदुज झेलम चेनाब, ये जगह में श्रीनगर। ओके। देन और एक चीज सिलेबस में है, उलाल लेक शायद है, ये अगर होगा उलाल लेक यहाँ पे दे देना, ये जगह पे, ये उलाल लेक, ये इस जगह में इंदुज झेलम नदी इसका इस तरफ, ये हो गया उलाल लेक। इसमें और इसका ऊपर थोड़ा सा मैं 1 मिनट देखता हूँ। है नहीं, उसी जगह में, इसी जगह में उलाल लेक। ओके, देन इसके बाद हम करेंगे, और मेन चीज बचा जो होता है हम लोग का प्लेन्स, वो येलो कलर होना चाहिए। अभी हम ये देखो महानदी से आए, तो ये जगह में देखो
कोस्टल प्लेन शुड मेंशन लाइक दिस, ये बाहर नहीं होना चाहिए ऐसे, ये बाउंड्री लाइन का बाहर नहीं होना चाहिए, कोस्टल लाइन का बाहर नहीं होना चाहिए। ये होता है यहाँ तक, ये होता है करमंडल कोस्ट, इससे यहाँ तक ये चिली का लेक तरफ इससे ले आना, ये नॉर्दर्न सर्कल। ओके, ये नॉर्दर्न सर्कल्स, ये करमंडल कोस्ट। इसके बाद ये वाला जो तुंगभद्रा और कावेरी यहाँ बीच तक ऐसे, ये हो गया कौन सा कोस्ट, मालवार कोस्ट। तो इसके बाद इसका बीच में ये देखो दो रिवर का बीच, यहाँ तक तो थोड़ा सा जगह, इसको बोलते कानारा कोस्ट, KNARA नॉट CA, कानारा बैंक वो वाली नहीं, KNARA। ओके, देन इसके बाद इसका बीच तक ना, ये वाला, ये दोनों बीच, नर्मदा तापी और गोदावरी, ये बीच तक, इसका मिडिल तक ऐसे, ये कौन कोस्ट। ओके, तब ये हो गया। देन नेक्स्ट वन हम देखेंगे, नेम द विंड दैट कॉजेस रेनफॉल ऑफ इंडिया, दैट कॉजेस समर रेनफॉल इन इंडिया, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून विंड, और मार्क एन एरो, indicate an arrow mark showing that the Bay of Bengal branch of southwest monsoon wind or Arabian Sea branch of southwest monsoon wind, like this। ये ब्लू कलर होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ये अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ओके, या समर मानसून। ओके, देन mark a place, mark arrow to show the retreating monsoon wind। याद दिलाओ, अक्टूबर नवंबर में रिट्रीटिंग मानसून विंड माने इंडियन लैंड मास से फ्लो होता है समुद्र तरफ, वो ऐसे, इसका होता है ऐसे, वो ब्लू कलर, ये रिट्रीटिंग मानसून विंड। और जनवरी फरवरी में नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, वो भी कहाँ होता है, ऐसे आता है, इसका डायरेक्शन ब्लू कलर। ये ट्रेड विंड का जो होता है जनवरी फरवरी में, वो जमीन से आके समुद्र से मॉइस्चर पिकअप करके कोस्टल तमिलनाडु में बारिश करता है। या ऐसे भी आएगा, गिव एन एरो मार्क टू इंडिकेट द मानसून द विंड दैट कॉजेस रेनफॉल इन कोस्टल तमिलनाडु ड्यूरिंग जनवरी फरवरी। सो दिस शुड बी जनवरी फरवरी मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। या मार्क एन एरो टू शो द विंड दैट कॉजेस रेनफॉल इन तमिलनाडु और कोस्टल तमिलनाडु ड्यूरिंग नवंबर डिसम्बर, दैट इज रिट्रीटिंग मानसून विंड। द डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस। Mark an arrow to show the winter and the wind that causes winter rainfall in Jammu Kashmir and Western Punjab and Western Rajasthan during winter season, that is western disturbance। Arrow mark should be like this, western disturbance, क्योंकि वो मेडिटेरियन सी से आता है, जितना मॉइस्चर लेके आता है रास्ते में सब मॉइस्चर खत्म हो जाता, इंडिया जब पहुंचता है इसके पास बहुत कम मॉइस्चर होता है, लेकिन उतना मॉइस्चर लेके वो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करता, ताकि विंटर में दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द व्हीट प्रोडक्शन इन पंजाब। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट होगा इम्पोर्टेंट चीज, और भी इम्पोर्टेंट चीज होता है, मैं याद दिलाता हूँ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होना चाहिए। हाँ, नेम एन एरिया व्हिच इज स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया इन नॉर्थ इंडिया और अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं तो दो मेन चीज बताया नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए
वो 23.5 डिग्री। और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, मेंशन मार्क द लाइन दैट डिवाइड इंडिया into 2 equal halves, और मार्क एंड मेंशन टॉपिक ऑफ कैंसर। टॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स जस्ट ये देखो, ये ऊपर वाला जो होता है, ये नीचे ऊपर, यहाँ पे रेड कलर ब्रोकन लाइन की हल्का सेमी सर्कल तरफ होना चाहिए। ये द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी में 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखना। कैसे लिखना? सपोज इसको डी दे दिया, द ओ कैपिटल होना चाहिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होना चाहिए ऐसे 23.5 डिग्री। मार्क एंड लेबल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो अगर तो हम खाली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखे, ट्रॉपिक 23.5 डिग्री नॉर्थ नहीं लिखे, वो मार्क कट जाएगा। ओके, मार्क एंड लेबल द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। वो देखो, स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन ऑफ इंडिया प्रयागराज या इलाहाबाद, वो जो सिटी में मैंने एक इलाहाबाद भी नहीं लिखा, जहाँ पे गंगा और यमुना कट करते मिलते हैं। एक्चुअली वो प्रयागराज कहा जाता था, गंगा यमुना सरस्वती, वो 3 नदी जहाँ पे मिलते थे। लेकिन अभी तो सरस्वती उभन हो गया बाली का नीचे, सैंड का नीचे, तो अब ओनली गंगा और यमुना, ये दोनों बहुत पवित्र स्थान माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। ओके, एनी हाउ, ये जो यमुना ये गंगा दोनों आके मिले यहाँ पे, ये प्रयागराज है और इलाहाबाद, ये जगह में हम रेड कलर ऐसे ब्रोकन लाइन, ये नदी का ऊपर चढ़ सकता, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और 82.5 डिग्री ईस्ट। मार्क एंड लेबल बोला जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड मेरिडियन के साथ ये भी लिखना, एरर मार्क लाइक दिस, ऐसे एरर मार्क को एक जगह में ले आएंगे इसे, या ई या एफ लिख देंगे, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट। देन सॉइल, मार्क ए लेबल ए प्लेस हैविंग alluvial soil। समझे, alluvial soil होना चाहिए ब्राउन कलर। हम जानते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये सारे एरिया पंजाब से आसाम तक के alluvial soil, ऐसे थोड़ा सा एरिया ले लेना ब्राउन कलर, alluvial soil। इसके बाद रेड सॉइल, रेड सॉइल कोई भी जगह साउथ इंडिया में, सो रेड सॉइल ये जगह में ले लेना, रेड सॉइल। देन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल ब्लैक होना चाहिए, और ब्लैक कॉटन सॉइल और ब्लैक रिगोर्ड सॉइल, ये यहाँ ये जगह में कर देना, क्योंकि गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र उसी जगह में कॉटन के लिए फेमस है। इसके बाद लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होता है? इसका कलर, रेड सॉइल का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। लेटराइट सॉइल भी रेडिश ब्राउन होना चाहिए, लेकिन हम इसको रेड भी लेते हैं, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। लेटराइट सॉइल इज फाउंड ऑन द माने टिप ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का टिप में लेटराइट सॉइल होता है। नेम द सॉइल व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश्यू नट्स। तुम लिखेंगे लेटराइट सॉइल, इट इज फाउंड इन द टिप ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का ऊपर लेटराइट सॉइल, तब हम यहाँ वेस्टर्न घाट दिए थे, इस यहाँ पे लेटराइट सॉइल रेड कलर दे देना। अगर लेटराइट सॉइल मेंशन करने आएगा तो मैंने ये नहीं आना चाहिए वेस्टर्न घाट, वो तो दोनों मिक्सिंग हो जाएगा ना। फिर भी अगर आया तो अब हम माउंटेन को क्या देते, ब्राउन कलर, यहाँ पे लेटराइट सॉइल को इसका ऊपर दे देंगे रेड कलर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर एक चीज आया, कभी कभी ये आता है लेटराइट सॉइल, देन मैक्सिमम टाइम में सॉइल ये आता है, नेम ए प्लेस हैविंग लेटराइट सॉइल अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूरा याद रखना, अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर एक जगह का नाम लिखो जो लेटराइट सॉइल है।
ये जगह में लिख देना, ये याद रखना, ये जो खाली जगह है ना इसका ऊपर ये लिखा है इसमें। ओके, अच्छा ये हो गया। देन लेटराइट सॉइल हो गया वो, और मेंशन ए प्लेस हैविंग alluvial soil in साउथ इंडिया, ये दे सकते, ये सो कोस्टल प्लेन, ये भी alluvial soil। नेम ए स्पार्सली पॉपुलेटेड प्लेस इन इंडिया एबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर है स्पार्सली, SPARSHLY, स्पार्सली पॉपुलेटेड प्लेस मतलब वहां पे जनसंख्या बहुत कम रहता। तो अब सबसे बढ़िया बेहतर तुम सिक्किम को ले लो। सिक्किम कहाँ है, जो ये वाला याद रखो, मैंने बाहर में काट देता हूँ सुविधा होगा। ये नेपाल खत्म हो गया ना, नेपाल के बाद इंडिया का ऐसे एक जगह, इसी जगह में हम कांचनजंगा लिए, तो यही जगह इसको सिक्किम। ओके, या कोई ये थॉर डेजर्ट के पास ये जगह भी वेस्टर्न पंजाब में, वेस्टर्न राजस्थान में ले जाने पर भी दिक्कत नहीं है। नेम ए डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया और प्लेस इन इंडिया, कोई भी सिटी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ले सकते, या केरला स्टेट ले सकते, यहाँ पे केरला स्टेट। सो दिस मच आई थिंक सो इंडिया मैप, सो दिस वन bearing 10 marks. Again I am telling you, kindly do like this. माने it is said by the expert of ICSE expert, you may use पेंसिल और कलर पेंसिल। माने प्लेन पेंसिल हम जो यूज करते हैं या कलर पेंसिल। इन माय नॉलेज कलर पेंसिल शुड बी मेंशन, शुड बी यूज, because it is also, the experts also say, if you use color pencil then try to use proper color, otherwise mark will cut. So if mark cutting provision is there, so definitely color pencil should be used. Okay, so color pencil यूज करना, एरो मार्क शुड बी मेंशन टुवर्ड्स फीचर। तो वहां से बाहर को हम ले आए एक जगह में ABCD लिख दिए, वहां कैपिटल लेटर होना चाहिए। रिवर का ऊपर हमेशा ब्लू कलर देना चाहिए। तो कोई फीचर जितना लंबा इससे कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज होता है, ये रिवर हो गया, देन तो ये नीट एंड क्लीन सब होना चाहिए। और सारे फीचर को देख के अगर तुम इसको यूज किए तो डेफिनेटली 10 मार्क तुम्हारा आ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे ख्याल में ये अगर 2 मार्क 10 मार्क तुम ले आए तो कम से कम 2-2.5% ज्यादा तुम्हें मिल जाएगा। अनजान में इतना आसान चीज, लेकिन हम इसको we are unable to grasp it because we don't know the technique। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, खाली थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा जानकारी होने पर you can easily score 10 marks in geography। Okay, I completed this portion। Thank you very much। Yeah।